بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج برقرار۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کے مطابق موٹر وے پر شدید دھند کے باعث بعض مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی، جس پر حفاظتی اقدامات کے پیش نظر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اسی طرح لاہور ملتان موٹر وے M3 کو سمندری سے درخانہ اور لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کو کوٹ مومنتا پنڈی بھٹیاں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے، جبکہ موٹر وے پولیس نے سفر کے دوران ڈرائیوروں کو گاڑیوں کی رفتار کم رکھنے اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب کے محسن کا تاریخ ساز اقدام، 10,000 طلباء کو بلا سود الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان، بے روزگاروں کو 10,000 الیکٹرک رکشہ ملیں گے۔ سرکاری ملازمین، خواتین اور اسپیشل افراد کے لیے 2,000 بائکس کا کوٹا مختص۔ سرکاری محکمے آئندہ صرف الیکٹرک بائک خریدیں گے۔ پنجاب میں الیکٹرک رکشہ سازی کا بھی باقاعدہ آغاز۔ محسن نقوی نے CEO سازگار کمپنی اسد حمید کو پہلا لائسنس دیا۔ الیکٹرک موٹر بائکس، رکشہ اور گاڑیوں کی نمائش دیکھی۔ رکشے میں بیٹھے چینی قونصل جنرل ضیاء الشیری اور امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز، چیف سیکریٹری زاہد زمان اور سربراہ پنجاب بینک ظفر مسعود بھی ہمراہ تھے۔ شہریوں کو بلا سود الیکٹرک موٹر بائکس اور رکشوں کی فراہمی سے متعلق فلیٹیز ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چینی قونصل جنرل ضیاء الشیری، امریکی قونصل جنرل کرسٹن کے نے باقاعدہ شرکت کی۔ وزراء SM تنویر، عامر میر، ابراہیم حسن مراد، بلال افضل شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقریب کے آغاز سے قبل الیکٹرک موٹر بائکس اور رکشوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے بائکس اور رکشے دینے کے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو 10,000 الیکٹرک بائکس بلا سود آسان شرائط پر دی جائیں گی۔ اسپیشل افراد کو بلا سود 2,000 الیکٹرک 3 ویلر بائکس بھی دیں گے۔ سرکاری ملازمین کو 2,000 الیکٹرک بائکس دی جائیں گی، جبکہ سرکاری اور نجی ملازمت پیشہ خواتین کو بھی 2,000 الیکٹرک بائکس بلا سود ملیں گی۔ 2,000 موٹر بائک الیکٹرک فیمیلز کے لیے، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، وہ ہمیں شروع کرنی پڑیں گی، تو یہ 6,000 یہ ہو گئیں گے۔ ایک اور چیز، پنجاب میں الیکٹرک رکشہ سازی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے چنچی رکشے کے رجسٹریشن پروگرام کا افتتاح کیا۔ سازگار کمپنی کے CEO کو پہلا لائسنس دیا۔ وزیر اعلیٰ نے چنچی رکشہ باڈی کے سٹینڈرڈز کا باقاعدہ اعلان کیا، جبکہ 10,000 الیکٹرک رکشے پنجاب کے تعاون سے بلا سود دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر فیول موٹر سائیکل خریدنے پر پابندی لگا دی ہے اور سرکاری محکمے آئندہ صرف الیکٹرک بائک ہی خرید سکیں گے۔ ایک اور چیز آج اعلان کرنے لگے ہیں کہ ہم 10,000 رکشاز انٹرسٹ فری امیڈیٹلی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ گورنمنٹ آف پنجاب آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک نہیں خریدے گی سوائے الیکٹرک بائک کے۔ CEO سازگار اسد حمید نے کہا کہ یہ وہ قدم ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ذاتی دلچسپی سے اٹھایا گیا اور اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ محسن نقوی صاحب، سر اٹ از یور ایفرٹ اینڈ آپ کی سوچ اور سمجھ، سر یہ 3 سال سے ان کو لائسنس نہیں مل رہا تھا۔ آئی ایم گریٹفل، تھینک یو ویری مچ۔ تقریب میں چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان، بینک آف پنجاب کے سربراہ ظفر مسعود اور مختلف کمپنیوں کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الیکٹرک موٹر بائکس، رکشہ اور گاڑیوں کی نمائش بھی دیکھی، رکشے میں سواری کی اور معیار کو سراہا۔ علی راہ میں City 42۔ عوام کی خدمت کا مشن تیز، وزیر اعلیٰ کے PIC اور سروسز ہسپتال کے ہنگامی دورے، 3 گھنٹے تک PIC کی نئی ایمرجنسی اور سروسز ہسپتال کے اپ گریڈیشن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ PIC کی نئی ایمرجنسی میں ٹائلز کی صفائی نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انتظامیہ کو مینٹیننس پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایات کی۔ 31 جنوری سے قبل گراؤنڈ فلور بھی اپ گریڈ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی خیریت دریافت کی، علاج معالجے کی سہولیات کا پوچھا۔ صحیح طرح دیکھ رہے ہیں، خرچہ باروں تو نہیں آیا ادھر 3 دن سے، تو دوائی بازار سے تو نہیں لی، سارا یہیں سے مل رہا ہے۔ محسن نقوی نے PIC اور سروسز ہسپتال کا دورہ کیا۔ سیکٹری تعمیرات و مواصلات نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے 3 گھنٹے تک نئی ایمرجنسی اور سروسز ہسپتال کے اپ گریڈیشن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ ایمرجنسی میں ٹائلز کی صفائی نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ابھی ٹائم پیریڈ میں نہیں آتے، ایسی زون میں صاف کرتا ہوں اور کوئی طریقہ نہیں، صرف اور صرف اس کو اور کوئی طریقہ نہیں۔
کمشنر کو مستقل صفائی کرانے کے لیے انتظامات کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران ٹائلز کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے سروسز ہسپتال کی عمارت کے فرنٹ کا بھی معائنہ کیا، معیاری کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے 31 جنوری سے قبل گراؤنڈ فلور کی اپ گریڈیشن مکمل کرنے کا حکم دیا۔ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس پرانی فیس پر ہی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرائیونگ لائسنس کی نئی فیس کا اطلاق مؤخر کر دیا۔ ڈرائیونگ لائسنس فیس میں اضافے کا اطلاق 16 جنوری سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے شہریوں کے مسائل سنے اور ڈرائیونگ ٹیسٹ میں تاخیر کا نوٹس لیا۔ شہریوں نے ترقیاتی کاموں کی تعریف کی اور محسن نقوی کے حق میں نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہریوں کو ایک اور خوشخبری سنا دی۔ ڈرائیونگ لائسنس کی نئی فیس کا اطلاق 16 جنوری سے ہوگا۔ لاہور میں پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں سے مسائل دریافت کیے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں تاخیر کی شکایات کا فوری نوٹس لیا اور قذافی اسٹیڈیم میں کار ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے 8 سینٹر قائم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ محسن نقوی نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ شہریوں نے صوبے میں ترقیاتی کاموں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ شہریوں نے نعرے بلند کیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے والوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے فوری ہدایات دی۔ محسن نقوی کا کسان دوست اقدام۔ پنجاب میں نہروں کی بھل صفائی کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا۔ کرین بھی چلائی۔ 5000 کلومیٹر طویل نہروں کی مرمت ہوگی۔ بھل صفائی کے بعد 3 سے 4 لاکھ ایکڑ اراضی کو پانی میسر ہوگا۔ پنجاب میں 10 سال بعد 22,000 کلومیٹر نہروں کی بھل صفائی مہم کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھل صفائی کے آغاز کے لیے کابینہ کو لے کر مسلم ٹاؤن موڑ پہنچے اور مہم کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی کے ساتھ وزراء جن میں ایس ایم تنویر، عامر میر، اظفر علی ناصر، کمشنر لاہور، سیکٹری آپاشی، سی سی پی او، ڈی سی لاہور اور سی ٹی او لاہور سمیت دیگر حکام نے نہر میں کسی کے ساتھ بھل صفائی میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیکٹری آپاشی واسف خورشید نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ آپاشی کی شکایات پر نہر میں سیوریج کے پانی کو نکاس کرنے کا نوٹس لیا۔ ڈی سی لاہور اور ایم ڈی واسا کو سیوریج پائپ ہٹانے کا فوری حکم دیا۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پہلے مرحلے میں بھل صفائی مہم 31 جنوری تک جاری رہے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں فروری سے مارچ تک 5000 کلومیٹر نہروں کے کناروں کی مرمت اور بحالی کی جائے گی، جس سے 3 سے 4 لاکھ ایکڑ اراضی کو پانی میسر ہوگا۔ ٹوٹل 22,000 کلومیٹر کی ہماری نہریں ہیں اور جس میں سے ہم 17,000 کلومیٹر کی نہروں کی صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا ٹاسک ہے۔ 5,000 کلومیٹر کی ہم مرمت کریں گے کیونکہ بہت ساری نہروں کو وہاں پہ ضرورت ہے مرمت کی تاکہ پانی کا فلو بہتر ہو سکے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس سے صرف 3 سے 4 لاکھ ایکڑ زمین کو پانی ہم ایکسٹرا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھل صفائی کی مانیٹرنگ کے لیے پاکستان آرمی کے ادارے لیمز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ لیمز دن رات مہم کی مانیٹرنگ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور کی نہر میں ڈرینیج کا پانی مکس نہیں ہونے دے سکتے۔ شہریوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ کوڑا اور ڈرینیج کا پانی نہر میں نہ ڈالیں۔ ہمارے جتنے چیف انجینئر، سب انجینئرز، ایکسین، سب کی لیمز نے ٹریننگ کی ہے۔ ہمارے پنجاب کے جتنے کمشنرز ہیں ان کی انہوں نے ٹریننگ کی ہے اور ہر کمشنر بشمول سیکٹری اریگیشن کے اور سیکٹری ایگریکلچر اور باقی ساروں کے اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے۔ مطلب پوری نہر میں آپ چکر لگائیں اس ٹائم پہ پوری نہر میں گندگی بھری پڑی ہے۔ اس کے لیے تو پبلک نے کرنا ہے، لیکن ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ صفائی رکھنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، ہر کام حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، شہریوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور میں پارکنگ کی جگہ مختص کیے بغیر کوئی بلڈنگ منظور نہیں ہو رہی۔ علی راہ میں سی 42۔ پنجاب حکومت کے ترجیحی منصوبے بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور میں بھجا راوی کا سیکشن دریافت کیا گیا ہے، جبکہ پورشن پر برج شامل کرنے سے لاگت میں مزید 15 کروڑ اضافہ ہو گیا۔ اور
और कंट्रैक्टर्स की जानब से बुड्ढा रावी के 400 मीटर के पोर्शन पर ब्रिज बनाने के लिए मजीद 12 पायलों का काम शुरू कर दिया गया है। मंसूबे की कंस्ट्रक्शन में ब्रिज शामिल करने से तामीराती लागत में इजाफा हुआ है। मंसूबे में इससे कबल पैकेज 1 में 38 कनाल अराजी की लैंड एक्विजिशन शामिल की गई थी। 3 अरब 10 करोड़ की लागत से लैंड एक्विजिशन की जा रही है। मजमूई तौर पर मंसूबे की लागत 15 अरब से तजावुज कर जाएगी। मंसूबे के रिवाइज PC1 की मंजूरी P&D और फिर पंजाब हुकूमत से ली जाएगी। 31 जनवरी की डेडलाइन के बायस मंसूबे पर काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है। निगरान हुकूमत की सेहत के शोबे पर गहरी नज़र। टीचिंग हस्पतालों में मशीनरी को फ़ाल रखने का निज़ाम राइज होगा। लिफ्ट्स मशीनरी को ऑपरेशनल रखना भी हस्पतालों की रिवैम्पिंग का हिस्सा होगा। हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। टीचिंग हस्पतालों में आए रोज मशीनरी आलात की खराबी का दरीना मसला हल करने का फैसला किया गया है। लिफ्ट्स मशीनरी को ऑपरेशनल रखना भी हस्पतालों की रीवैम्पिंग का हिस्सा होगा। लिफ्ट्स की तनसीब और देखभाल तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। मंसूबे के तहत लिफ्ट्स और मशीनरी समेत तिब्बी आलात की लागबुक मुरतब होगी और मियाद पूरी करने वाली लिफ्ट्स मशीनरी को तब्दील कर दिया जाएगा। कैबिनेट कमेटी की 18 शहरों में सेफ सिटी कैमरे लगाने की मंजूरी। 4 अरब 90 करोड़ का बजट मंजूर। 52 साइंसदानों को भर्ती किया जाएगा। कमेटी ने फोरेंसिक साइंस एजेंसी में 52 साइंसदानों को भर्ती करने की मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने मरहूम DG डॉक्टर अशरफ ताहिर को वफात के बाद 2 करोड़ माली इमदाद देने की तजवीज़ मंजूर की है। कमेटी ने पंजाब के 18 शहरों में सेफ सिटी कैमरे लगाने की मंजूरी भी दी। कमेटी ने ये कैमरे लगाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया। निगरान वज़ीर आला के अहकामात की रोशनी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तबरुकात की हिफाजत के लिए गैलरी बनाने का काम शुरू कर दिया गया। पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी बादशाही मस्जिद में खसूसी तबरुकात को महफूज रखने के लिए मनसूबा 6.5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करेगी। तारीखी अहमियत की हामिल बादशाही मस्जिद में मुकद्दस तबरुकात को महफूज करने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला के अहकामात की रोशनी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तबरुकात की हिफाजत के लिए गैलरी बनाने का काम बाकायदा शुरू कर दिया गया। पंजाब वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी के तहत यह मंसूबा रवां साल जून में तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर शहर के मजहबी और सकाफती विरसे की नुमाइंदगी करदा बादशाही मस्जिद में मुकद्दस तबरुकात को महफूज तरीके से रखा जाएगा ताकि आने वाले सयाह इस मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत से मुस्तफीद हो सकें। शहर की होलसेल मंडी और परचून मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला बरकरार। चावल, हल्दी, जीरा समेत दीगर अशिया के निर्ख बढ़ गए। होलसेल मंडी में दर्जा दोम क्वालिटी के चावल 20 से 30 रुपए तक महंगे हो गए हैं, जिसे परचून में चावल 320 से 350 रुपए तक फरोख्त होने लगे। इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों का सर्फ मजीद 10 रुपए महंगा करके 630 रुपए का कर दिया गया। 1 किलो खुली चाय की पत्ती 50 रुपए इजाफे के साथ 1630 रुपए की हो गई है। 1 पाव हल्दी 50 रुपए और 1 किलो जीरा 100 रुपए महंगा हुआ है। जीरा 1200 से 1300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत भी बरकरार है। शहरी मजबूरन महंगे दामों ओपन मार्केट से दालें खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से ओपन मार्केट में महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस फार्मी अंडों की कीमत में इजाफा जारी। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए इजाफे से 390 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अंडों की सरकारी कीमत में 2 रुपए इजाफे के बाद अंडे फी दर्जन 390 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मार्केट में अंडे 450 रुपए फी दर्जन से जायद कीमत में फरोख्त होने लगे, जबकि अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 11,580 रुपए जारी किया गया। दूसरी जानिब शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलो कमी हुई। मार्केट कमेटी की जानिब से गोश्त की सरकारी कीमत 573 रुपए फी किलो जारी। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 380 रुपए जबकि परचून रेट 395 रुपए फी किलो जारी किया गया। मुगलपुरा साहवाड़ी के इलाका मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। इलाके में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस अहले इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम। मौजूद मुगलपुरा के इलाके में यहाँ पर मौजूद सोवाड़ी का जो इलाका है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अरसा दराज से जो है वो गैर फ़ाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट को बनाया तो गया लेकिन वो अवाम को जो है वो सहूलत फराहम नहीं कर सका और चलते ही जो है वो बंद हो गया। और यहाँ पर कूड़ा किटकिट के ढेर लगे हुए हैं, ताफुन जो है वो फैल रहा है, बदबू जो है वो इंतहाई ज़्यादा है। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, उनसे जान लेते हैं। जी सर बताइएगा कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो कितने अरसे से बंद है और यहाँ पर जो पीने का साफ़ पानी है वो आवाम को कितने अरसे से जो है वो फराहम नहीं हो रहा है?
सर ये तकरीबन 3 साल से बंद है, पिछले 3 साल से ये बंद है। इसके साथ बिल्कुल ट्यूबवेल भी था, उसको भी बंद कर दिया गया पिछली हुकूमत में। वो जो उन्होंने बोर जो है उसका वो भी निकाल दिया हुआ है, ट्यूबवेल का, मोटर वगैरह सब कुछ वो ले गए हुए हैं। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ये बंद पड़ा हुआ है सर, ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि तकरीबन 3 साल से जो है ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बंद है, बल्कि इसके साथ साथ मुल्लिका जो ट्यूबवेल है वो भी पिछले साल जो है बंद कर दिया गया है, बल्कि उसका बोर ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है इलाका मकीनों को। उनको पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ यहाँ का जो इलाके का अपना पानी है वो इंतहाई गंदा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं इलाका मकीन। इसलिए जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। निश्तर कॉलोनी में वाक़ यासर ब्लॉक पार्क इंतजामी गफलत का शिकार हो गया। पार्क का अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार, झूले भी टूट फूट का शिकार। पार्क में पानी भर जाने के बायस सब्जा कीचड़ की सूरत इख्तियार कर गया है। मजीद अहवाल जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद। जी मैं इस वक्त निश्तर कॉलोनी में वाक़ यासर ब्लॉक पार्क में मौजूद हूँ, जो कि अरसा दराज से इंतजामी गफलत का शिकार है। पार्क में मौजूद जो झूले हैं ये भी टूट फूट का शिकार है। उसके साथ ही साथ पार्क में पानी भर जाने के बायस यहाँ पर कीचड़ जो है वो पैदा हो रहा है, और उसमें मच्छरों की अफजाई जो है ये हो रही है। इलाका मकीन भी इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, कितने अरसे से पार्क टूट फूट के शिकार है, क्या परेशानी होती है? परेशानी ये है कि 4 साल से यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का काम कभी नहीं हुआ सर। यहाँ पे बारिश होती है, पानी कई कई महीने इधर खड़ा रहता है। कोई इंतज़ामी गफलत की वजह से इधर दरख्त गिर जाते हैं, और बिजली की तारें लटकी हुई हैं। बच्चे पार्क में खेलते होते हैं, करंट के वाक़यात हुए हैं। ये झूले टूटे हुए हैं, इधर से बच्चे ऊपर से गिर जाते हैं। अक्सर ऐसे कई काम हो रहे हैं, यानी कि फ़ंड जो मिलता है इस इलाके के पार्क के लिए वो हमारे ऊपर, इस पार्क के ऊपर नहीं लगाया जाता। और हमने काफ़ी जगह पे PHA में भी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से इलाका का कहना है कि ये पार्क जो है ये इंतज़ामी गफलत के शिकार है। PHA की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म के कोई तरक्याती काम जो है नहीं करवाए गए हैं, बल्कि इस पार्क की सफाई जो है वो भी नहीं करवाई जाती, और जो पार्क में कीचड़ और पानी भर जाता है उसके बाइस ताफुन इलाके में फैलता रहता है। अहले इलाके ने मुतालबा किया है कि इस पार्क की जल्द अज जल्द मेंटेनेंस का काम मुकम्मल करवाया जाए, ताकि ये जो इलाका मकीन है ये इस पार्क में जो नहीं आ सकते हैं। जी साजिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नई आबादी कॉलोनी गढ़ी शाहू और शाहजमाल कच्ची आबादी के मकीन गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन का सुई गैस की फ्राहमी का मुतालबा। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। नई आबादी कॉलोनी गढ़ी शाहू के मकीनों ने गैस की अदम फराहमी पर एहतजाज करते हुए हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था गैस न होने के बाइस हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं और बिल हजारों में आ रहे हैं। हमारी हुकूमत और इंतजामिया से इल्तिजा है गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कभी भी नहीं आती गैस, न गर्मियों में न सर्दियों में। हम चूल्हा जला रहे हैं, गत्ते जला रहे हैं, कागज मार के हांडी बना रहे हैं। शाहजमाल कच्ची आबादी के मकीन भी सुई गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस सरापा एहतजाज बन गए। शाहजमाल कच्ची आबादी के रिहायशियों का कहना है इलाके में सुई गैस नहीं आ रही, लकड़ी और सिलेंडर की महंगी गैस इस्तेमाल करके गुजारा कर रहे हैं। सुई गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया है, मगर घरों में गैस आ नहीं रही। गैस का बहुत मसला है। बाजार से जो है ना हम सिलेंडर भरवा रहे हैं, वो हमें महंगी पड़ती है, वो भी जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है। इधर अनारकली धोबी घाट में गुज़िश्ता 1 साल से गैस गायब। सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और जायद बिलों ने इलाके में रहना नामुमकिन कर दिया। रिहायशियों के मुताबिक गुज़िश्ता साल रमजान से अब तक चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुज़िश्ता रमजान हर दिन रोजा रखकर गुजारा करना पड़ता था। हमारी गैस ही नहीं आ रही, अब सिलेंडर भर रहे हैं, वो भी 500 का सिलेंडर, और गैस इतना ज्यादा आ रहा है कि कभी 5000, कभी 3000, कभी 2000 है, इससे नीचे कम नहीं आ रहा। सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर शहरियों का कहना है गैस ना होने के बायस महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के दौर में रोज ब रोज बाहर का खाना कुव्वत खरीद से बाहर है। लेस्को ने जलने खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने मुख्तलिफ सर्कल्स को 30,000 सिंगल फेज मीटर्स जारी करके बिलिंग MCO रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ने मुख्तलिफ सर्कल्स को 30,000 से जायद सिंगल फेज मीटर जारी कर दिए। जराये ने बताया कि लेस्को में मजमूई तौर पर 1,10,000 सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव करार दिया गया है।
लेस्को ने मुतलका दफातर को मीटर्स जारी करके बिलिंग और MCO का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तमाम दफातर को रवा माह की बिलिंग से कबल खराब सिंगल फेज मीटर्स तब्दील करने की हिदायत की गई है। वाज़े रहे कि खराब होने वाले मीटर्स पर सार्फिन को औसत बिल्स भिजवाए जा रहे हैं। इस तरह सर्दियों में सार्फिन मौसम गर्मा के मुताबिक इजाफी यूनिट्स के बिल्स देने पर मजबूर हैं। लेस्को को 2 साल से मीटर्स की किल्लत का सामना है। मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी की गई है। रेलवे हेडक्वार्टर हुकाम की तमाम कोशिशें रायगा, ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त का मामला हल न हो सका। नए साल के आगाज में भी ट्रेनें पुरानी रविश पर चलने लगीं। 10 दिनों में मेल और इंटरसिटी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी 59% रिकॉर्ड की गई, जबकि 10 दिनों में रेलवे ट्रेन ऑपरेशन के 91 घंटे ज़ाया हुए। क्वार्टर हुकाम की तमाम कोशिशें रायगां, ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त का मामला हल न हो सका। नए साल के आगाज में भी ट्रेनें पुरानी रवश पे चलने लगीं। रेलवे अफसरान के लिए 69 ट्रेनें बरवक्त चलाना मुहाल हो गया। रेलवे इंतजामिया 33 मील और 36 इंटरसिटी ट्रेनें भी वक्त पे चलाने से कासर। 10 दिनों में मेल और इंटरसिटी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी 59% रिकॉर्ड। 10 दिनों में रेलवे ट्रेन ऑपरेशन के 91 घंटे ज़ाया हुए। लाहौर के खूबसूरत फ्लाईओवर्स के नीचे नशे के आदी अफराद के डेरे। सर्दी की ठंडी शामों नशे के आदी अफराद बगैर किसी हिफाजत के सोने पर मजबूर हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं उमैर अफसर से। जी उमैर, बताइएगा। लाहौर के दीगर शाहराहों पर जहां पर किसी जगह पर जो है वो फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं और किसी जगह पर जो है वो मॉडर्न सड़कें बनाई जा रही हैं और उन सड़कों के किनारे पर जो है वो तज़ीन व आराइश का काम किया जा रहा है ताकि लाहौर जो है वो खूबसूरत हो। लेकिन जहां लाहौर के डिफरेंट शाहराहों और फ्लाईओवर्स के नीचे खूबसूरत तरीन पौधे लगाए गए हैं और तज़ीन व आराइश का काम किया गया है, वहाँ पर सर्दी की ठंडी शामों में जो है वो कुछ नशे के आदी अफराद जो हैं वो बगैर किसी कंबल और बगैर किसी सर्दी के इंतजामात के जो है वो सोने पर मजबूर हैं। इनसे जानते हैं कि किस वजह से ये जो लोग हैं, क्यों इन लोगों को जो अपने घर से निकाला गया और क्यों ये लोग इन सड़कों पर और इन चौराहों पर जो है वो बसेरा किए हुए आए मेरे साथ, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? इधर हम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से इधर ही सोते हैं, इसी जगह पे? हाँ जी। उनको बताइए कि हम मजबूर है, इधर ही रहते हैं और कहीं नहीं जा सकते। सर्दी तो बहुत लगती है लेकिन मजबूरी है, मजबूरी काटनी पड़ती है। ऐसा होता है कि नशा किया, सो गए आराम से और सर्दी का जो शिद्दत है वो उसका पता ही नहीं चलता? सर्दी बहुत लगती है, मैं नशा नहीं करता, सर्दी बहुत लगती है लेकिन मजबूरी है, अब क्या करें। जी नाज़रीन, आप इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मैं 15 साल से इन सड़कों, चौराहों और फ्लाईओवर के नीचे सो रहा हूँ। अपना गुजर बसर करने और डेली का जो खाना खाने के लिए जो है वो मैं सड़कों के चौराहों और जो सिग्नल्स पर खड़ा होकर भीख मांगता हूँ, जिससे मेरे रोज़ाना की आमदन तकरीबन 500 से 600 रुपये हो जाती है, जिससे मेरा खाना पीना और चलता रहता है। लेकिन मेरे पास रज़ाई और कंबल वगैरह खरीदने के पैसे नहीं हैं। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तारिक नदीम पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बानी पीटीआई की इलेक्शन अपील की समाअत की। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी के मुतालिक रिकॉर्ड पेश किया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि तजवीज कुनुंदा इसी हलका से है। शुमारियाती कोड में तजवीज कुनुंदा हलका NA 122 से है। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा कि शुमारियाती कोड ही असल चीज है, इसके बाद तो मसला नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा करवाते हुए कहा कि इलेक्शन डे से पहले मीडिया सर्वे और प्रोग्राम्स कर सकता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के जवाब की रोशनी में दरख्वास्तें निपटा दी। पुलिस ने जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस में 3 नए रूपोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 नए गिरफ्तार मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की। पुलिस ने 3 मुलजिमान अवैस अली भट्ट, मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद आरिफ को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जिना हाउस और 9 मई जलाओ घेराव के दीगर मुकदमात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फुटबॉल की खिलाड़ी शुमाइला सत्तार, रजिया सुल्ताना, फरहत फारूक और सैयद जैन अली समेत 118 मुलजिमान की उबूरी जमानतों पर समाअत 10 फरवरी तक तौसी कर दी और आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीश
तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर 30 जनवरी को दलाइल तलब कर लिए। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। परवेज इलाही के शरीक मुल्जिम आसिफ महमूद को नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने मुल्जिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब लाहौर के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा 16 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एंटी करप्शन की मुअन्नस इलाही के वारंट हासिल करने की दरख्वास्त। एंटी करप्शन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुअन्नस इलाही के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें वो जानबूझकर पेश नहीं हो रहा और रूपोश है। इस्तदा है कि उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत को हड़ताल के मामला के हल के लिए तजावीज और लाहे अमल बनाने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने करार दिया कि ऐसा लाहे अमल या फोरम बनाया जाए कि डॉक्टर्स की हड़ताल से पहले ही मामला हल हो सके। कपड़े ऑर्डर के मुताबिक सी कर ना देने और दरख्वास्त गुजार को बार बार चक्कर लगवाने पर मैन वेयर शॉप शादमान के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का थाना मॉडल टाउन का अचानक दौरा, थाने की इमारत में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अचानक थाना मॉडल टाउन पहुंचे, जहां उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मंसूबे के तहत इमारत में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतहर, एआईजी एडमिन साहिबजादा बिलाल उमर, एसपी मॉडल टाउन इर्तिजा कुमैल और एएसपी गुलबर्ग सईदा शहर बानो नकवी भी हमरा थे। आईजी पंजाब ने इमारत में एसडीपीओ समेत दीगर दफातर, बैरिक्स और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। डीआईजी ऑपरेशंस ने आईजी पंजाब को जारी तामीराती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद थानों के तफ्तीशी अफसरान को मुअत्तली समेत दीगर सजाएं दी गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में 39 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फीकैन ने अफसरान को अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। मुद्दईया नासरा बीबी, ज़ैनब बीबी और सफिया बीबी कत्ल, अब्दुल रहीम इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीशी तब्दील के लिए पेश हुए, जबकि मुद्दई मकसूद अगवा, वज़ीर हुसैन अमानत में ख़यानत और अरमान चोरी, ज़फ़र इकबाल फ्रॉड के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। डीसी की ज़ेर सदारत शहर की अहम शाहराहों की मरम्मत व बहाली की बरवक्त तकमील के हवाले से जायजा इजलास। डीसी लाहौर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहर में मजमूई तौर पर 414 तरक्याती मनसूबे जारी हैं। शहर की अहम शाहराहों की मुरम्मत बहाली की बरवक्त तकमील के हवाले से डीसी लाहौर आफिया हैदर ने दिन भर की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद ने जारी मुरम्मत और बहाली के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। राफिया हैदर का कहना था शहर की 8 अहम शाहराहों पर 40% काम मुकम्मल किया जा चुका है। दीगर 63 शाहरों की मुरम्मत का काम भी शुरू है। पैच वर्क की 299 स्कीमों पर काम जारी है। फुटपाथ की मुरम्मत की 44 स्कीमों का काम हो रहा है। तमाम मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर जोन में अफसरान का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। पीएचए लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 25वां इजलास। माली साल 2023 और 24 के लिए पीएचए के बजट की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद अजफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। DDPHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने पीएचए की सरगर्मियों पर बोर्ड मेंबरान को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में महकमे के इंतजामी और माली मामलात से मुतअल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया। सूबाई वज़ीर की पीएचए के शोबा मार्केटिंग को मज़ीद मुस्तहकम करने की हदायत की। इजलास में पुल, अंडरपासिस और दीगर शाहराहों पर बिलबोर्ड्स और स्टीमर्स की गैर कानूनी तशहीर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी चाराजोई के अज़म का इआदा किया गया। बोर्ड मेंबरान की जानिब से पीएचए की कारकर्दगी को भी सराहा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पंजाब भर के नर्सिंग इदारों के सरबराहान का इजलास। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने सदारत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नर्सिंग इदारों के इजलास में BS नर्सिंग का नया सेमेस्टर बेस्ड निसाब पेश किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने कहा कि नए नर्सिंग निसाब में क्लिनिकल आवर्स बढ़ाए गए हैं, जबकि नए निसाब को बैनुल अक़वामी मयार और मौजूदा पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक तरतीब दिया गया है। उन्होंने कहा अंग्रेज़ी और अरबी बोलचाल को भी निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। टीचर्स की नए निसाब पर तरबियत के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद भी करेंगे। इस मौके पर UHS नर्सिंग डिपार्टमेंट की सरबराह प्रोफेसर समीना कोसर ने नए निसाब पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नया
नर्सिंग करिकुलम हायर एजुकेशन कमीशन की अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी 2023 के मुताबिक है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास डिसलिटिंग ऑपरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में डिसलिटिंग ऑपरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया। MD वासा ने रेवेन्यू कलेक्शन में गफलत बरतने वाले अफसरान पर इजहार बरहमी किया। इजलास में DMD F&R अब्दुल लतीफ़, DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की। MD वासा ने कहा कि मानसून से कबल तमाम ड्रेन डिसलिटिंग शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल की जाए, तमाम ड्रेन्स की डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम डिसलिटिंग की जाए, तमाम पुलों के नीचे से खसूसी सफाई भी करवाई जाए, जबकि इस हवाले से सर्वे करवाने का हुक्म भी दिया है। हज़रत शाह अनायत कादरी के उर्स की तकरीबात का आगाज़ पहले रोज़ बड़ी तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। शाह अनायत कादरी के उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। मज़ार शरीफ पर रस्म चादरपोशी की तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, शाहिद हमीद विक, हसन रिजवान शरीक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह आज आपका सालाना उर्स रस्म चादरपोशी से आगाज़ पजीर हुआ। आप बर्रे सगीर में कादरी सिलसिले की अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं और आपका मज़ार लाहौर में मरजा खलाइक है। लाहौर जो है ये कादरी सूफिया का बहुत बड़ा मरकज़ है और इसकी तहजीब और कल्चर पे इन बुज़ुर्गों का के फैज़ान। करशी यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मोटापा एक जदीद तर्ज ज़िंदगी का डरावना ख्वाब के मौजू पर सेमिनार हुआ। तालिब इल्मों को मोटापे से महफूज रखने के हवाले से लेक्चर्स दिए गए। करशी यूनिवर्सिटी में मोटापा एक जदीद तर्ज जिंदगी का डरावना ख्वाब के मौजू पर सेमिनार का इनकाद किया गया। CEO MD हेल्थ सेंटर लाहौर डॉक्टर नसरीम इकबाल ने कहा, मोटापा एक बीमारी है, सेहत नहीं। नौजवान नस्ल ज्यादा शिकार हो रही है। रोजमर्रा जिंदगी में चिकनाई से भरपूर अशिया का इस्तेमाल कम करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमें बताई है, ख़ास तौर पे जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है इंटरनेशनली जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप देखें तो आपका जो नमाज है इट्स अ परफेक्ट लाइफस्टाइल। तो नमाज जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो उसको कायम करें, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी जब नमाज आप पढ़ने जाते हैं मस्जिद जाके, तो उसमें आपकी एक्टिविटी होती है, उसमें आप टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं और इसी तरह आपकी इमोशनल हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, आप लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेमिनार में हेड ऑफ क्यू टॉक्स डॉक्टर मिसबा इकबाल करशी समेत डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर्स ने कहा, अपनी सेहत का ख्याल रखना सबकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। शुरा की जानिब से सेमिनार के इनेकाद को खूब सराहा गया। मोटापा 100 बीमारियों का घर है, तो उनका सिंपल तरीका है मूव मोर ईट लेस एंड ईट राइट। और शुगर रिफाइंड मैदा हर चीज़ों तो जड़ा ना तो चीज़ों को मिक्स नहीं करना। तबे शरीर दे विच सिंपल हजूर पाक ने कहा है कि खजूर के हिस्से का खाना है। Exchange of knowledge is always helpful. It promotes thinking, free thinking, and exchange of ideas, which lead to more ideas about various research projects, and also help in development of curriculum for the students. मोटापे के साथ मुतअद्दिद अमराज भी सामने आते हैं, जिनमें ज़ियाबैतीस, अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर काबिल जिक्र है। मोटापे से महफूज रहने के लिए तर्ज जिंदगी को बेहतर करना होगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम एस्पीरियर बिजनेस इनोवेशन एंड रिसर्च सिम्पोजियम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ पेश किए। यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस के ज़ेरे एहतमाम सुपीरियर बिजनेस इन्वेंशन एंड रिसर्च सिम्पोजियम की तकरीब का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ अंदाज में मुतअद्दिद बिजनेस आइडियाज को पेश किया। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, हमारी कैंपस के तलबा इंतहाई मेहनती हैं, इसलिए हमेशा इन्हें ऐसे मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीह रहती है। इसका बुनियादी मकसद है कि कैसे हम स्टूडेंट्स के अंदर जो रिसर्च की एक अहमियत है उसको उजागर कर सकते हैं, और नंबर 2 रियल टाइम जो बिजनेसेस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कैसे ये जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिकल उनका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तकरीब में डायरेक्टर सिटी कैंपस डॉक्टर एहतशामुल हसन, डीन डॉक्टर सलमान मसूद, HOD अनस हसन, ऑर्गेनाइजर नुमान असलम समेत दीगर शरीक थे। आमतौर पर ये जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में आते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। यंग लोग अभी नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये शुरू किया और पेपर लिखे हैं सारे, और उनके सुपरवाइजर बड़े अच्छे हैं, उनको गाइड करते रहे। लेकिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की जानिब से तरक्की करने के बेहतरीन मौके फराहम किए जाने के अमल को खूब सराहा। कैमरामैन असद के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42।
मिनहाज यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी असिस्टेंट मुतारिफ करवा दिया गया, जबकि तुलबा एक बटन दबाकर अपनी पसंदीदा किताब तक रसाई हासिल कर रहे हैं। के तालीमी निजाम में जिद्दत। यूनिवर्सिटी तलबा की आसानी के लिए लाइब्रेरी में रोबोट ले आई। रोबोट तालिबे इल्मों की किताबों तक आसान रसाई में अहम किरदार अदा करने लगा है। वीसी मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर SM शहजाद ने रोबोट की परफॉर्मेंस पर रोशनी डाली। हाल ही में हमने अपनी रोबोटिक लाइब्रेरी स्टार्ट की है। इसमें ये कि स्टूडेंट्स आएंगे, अपने टैब के ऊपर आके वो टाइप करेंगे कि उनको कौन सी बुक चाहिए। रोबोट्स हैं जो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, वो जाएंगे पर्टिकुलर शेल्फ में, वहाँ से उनकी बुक लाएंगे और लाके उस स्टूडेंट को टेबल पर डिलीवर करेंगे। और जब स्टूडेंट वो इस्तिफादा हासिल कर लेगा उस किताब से, तो वापस उसी तरह रोबोट वहाँ से उठाएगा बुक और जाके अपने रैक में रख देगा। डायरेक्टर लाइब्रेरीज आसिफ बिलाल बताते हैं कि रोबोट काम कैसे करता है। इसका जो कोर पर्पस है वो सिर्फ यही है कि एक तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुके हैं। ये जो स्टाफ है वो समटाइम बिजी हो जाता है, स्टक हो जाता है टू हैंडल देयर क्यूरीज। आपने किसी रिस्पेक्टिव शेल्फ तक जाना है तो इसके अंदर सारी शेल्फ लोकेशंस हैं, फिर इसके अंदर लिफ्ट तक आपको लेके जा सकता है, स्टेयरकेस तक लेके जा सकता है। तलबा निजाम तालीम में जिद्दत के हवाले से यूनिवर्सिटी की काविशों को सराह रहे हैं। ये हमें बहुत फायदा देता है। पहले तो बुक्स हम खुद जाके सर्च करते थे, लेकिन इससे हमें खुद बुक्स तक ले जाता है जो हमें चाहिए होती है। हमारे लिए बहुत आसानी है। हमें बुक्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और जब से ये रोबोट बन गया है तो हमारे लिए बुक्स को ढूंढना इतना इजी हो गया है कि हमारे सिर्फ एक सिंगल क्लिक से ये उस शेल्फ तक ले जाता है जो भी हमें बुक चाहिए हो, जो भी बुक हमें रिक्वायर्ड हो। रोबोट की वजह से तलबा की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ गई है। हर रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में हजारों किताबों से मुस्तफीद हो रहे हैं। यूं तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के दौर में काफी पीछे है, मगर इस तरह के रोबोट एक मुस्बत सफर के आगाज की आगाही करते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42। लॉलीवुड के सुल्तान दाही की 28वीं बरसी उनकी रहायशगाह GOR में मनाई गई। कुरान ख्वानी की गई और मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार सुल्तान दाही मरहूम की 28वीं बरसी का इनेकाद उनके साहबजादे हैदर सुल्तान दाही ने किया, जिसमें उनके मद्दाहों समेत फिल्म इंडस्ट्री से मुसन्निफ नासिर अदीब, शेर खान, इल्ताफ खान, खावर खान समेत दीगर शरीक हुए। इस मौका पर कुरान ख्वानी की गई और मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ की गई। हैदर सुल्तान दाही का कहना है कि आज भी उनके वालिद की मकबूलियत है और उनके मद्दाह आज भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। नामवर एक्टर देखा, ना एक्ट्रेस को देखी, ना प्रोड्यूसर देखा। दुख इसलिए होता है कि हर प्रोड्यूसर ने उनसे फ़ायदा उठाया, हर डायरेक्टर जो था उनकी वजह से था, हर आर्टिस्ट जो था उनकी वजह से था। आप देख रहे सुल्तान लेके जाने के बाद कितने ही डायरेक्टर अपनी मौत आप मर गए, कितने एक्टर मर गए। ना मुस्तफ़ा कुरैशी का वो दबदबा रहा, ना अंजमन का वो चहक रही, ना इलियास कश्मीरी और हुमायूं कुरैशी के वो विलन जो थे वो रहे। शाह कमाल क्लब ने अल बिलाल क्लब को 21 रन से शिकस्त देकर सदीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल बिलाल ग्राउंड पर शाह कमाल क्लब ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 257 रन बनाए। मशहूर रशीद 47, हमजा अहमद 40, अली शाह 31 और अब्दुल्ला हसन 22 रन बनाकर नुमायां रहे। अल बिलाल क्लब के नासिर महमूद और राव ख़याम ने 3-3 और मोहम्मद आज़ान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अल बिलाल क्लब की टीम 236 रन बनाकर आउट हो गई। राव ख़याम ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए। अली सिकंदर 22, मोहम्मद आदिल बिलाल 22 और आतिफ अब्बासी 18 रन बनाकर नुमायां रहे। शाह कमाल क्लब के मोहम्मद अरसलान और अजीजुल्लाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हमजा अहमद, अली शाह, मशहूर रशीद और साद नदीम ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम के इंतखाब से कबल तरबीती कैंप के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान। कैंप 10 से 18 जनवरी तक लगेगा। 3 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम का इंतखाब होगा। इंतखाब से कबल तरबियती कैंप के लिए 23 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। कौमी विमेंस सिलेक्शन कमेटी ने T20 अफ्रीकी सीरीज़ के लिए खिलाड़ियों का ऐलान किया है। सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और मेज़बान बांग्लादेश शामिल हैं। कैंप 10 से 18 जनवरी तक कराची में लगाया जाएगा। कैंप के लिए ऐलान करदा मुमकिन खिलाड़ियों में अलीजा मुख्तियार, अनुषा नासिर, अरिशान सारी, एमन फातिमा शामिल हैं। हलीमा दुआ जफर, हानिया अहमद, कायनात ईमान, कोमल खान, लाइबा नासिर, माहम अनीस, माहनूर आफ्ताब और दीगर शरीक होंगे। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने दोस्ताना वनडे क्रिकेट मैच में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए लाहौर पुलिस को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी।
मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में लाहौर पुलिस ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। लाहौर पुलिस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 187 रन स्कोर किए। मोहम्मद आसिफ ने 53 और मुजम्मल ने 37 रन बनाए, जबकि मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब ने हदफ 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब की जानिब से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बिलाल डार ने 53 और नुमान ने 51 रन स्कोर किए। नेशनल स्नूकर एंड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंजाब का 14 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा। मोहम्मद सज्जाद एजाज का दिफा करेंगे। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 15 से 23 जनवरी तक कराची में खेली जाएगी। पंजाब के मोहम्मद साजिद चैंपियनशिप में एजाज का दिफा करेंगे, जबकि साबिक वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ और एहसन रमजान भी पंजाब के दस्ते में शामिल हैं। पढ़ाई के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनमा के लिए अहम इक़दाम। मुल्क की पहली मुई थाई मार्शल आर्ट्स अकेडमी कायम कर दी गई। तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए सेहतमंद और अच्छा मार्शल आर्ट्स फाइटर बनाने के लिए गुलबर्ग में मुई थाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी कायम की गई है। एकेडमी में अंडर 16 बच्चों को जिस्मानी फिटनेस समेत मुई थाई की टेक्निक्स भी सिखाई जा रही हैं। मुई थाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी में तरबियत हासिल करने वाले नन्हे बच्चों का कहना है कि वो मुस्तकबिल में आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और मैं एक अच्छी फाइटर बनना चाहती हूँ और पाकिस्तान के लिए खेलना चाहती हूँ। अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करके और मैं यहाँ 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। मैं एक अच्छा फाइटर बनना चाहता हूँ और अपने पाकिस्तान के लिए मेडल लेके जाना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। कोच सैयद कामरान नकवी का कहना है कि हमारी कोशिश है नन्हे बच्चों को बेहतरीन ट्रेनिंग के जरिए पाकिस्तान को बेहतरीन फाइटर्स फराहम करें जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करें। यहाँ पर अंडर 6 से लेके अंडर 16 एज तक के बच्चों को ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।